Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Akil, visiting lecturer, University of Education, DG Khan campus. Our course is Introduction to Statistics and Probability, and our topic is probability, learning outcomes, meaning of probability, random experiment, sample space, events, simple and compound events, mutually exclusive events, exhaustive events, equally likely events, axioms of probability. ये टॉपिक्स जो हैं आज हम पढ़ेंगे. So first, probability. The word probability has two basic meaning. First is quantitative measure of uncertainty, and second is measure of degree of belief in particular statement or problem. Example: it is very likely to rain today, or I have a chance to pass the annual examination. He has a chance to win the prize, but on the basis of past we have some degree of personal belief in truth of each statement. प्रोबेबिलिटी को जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि दो चीज़ों में की मेजरमेंट है, एक अनसर्टेनिटी, दूसरा है डिग्री ऑफ बिलीफ इन पार्टिकुलर स्टेटमेंट. एक ख़ास स्टेटमेंट में, एक प्रॉब्लम में हमारा एक ख़ास किस्म का यकीन होता है, और दूसरा ये है कि हम अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं. पहला जैसा कि एग्जांपल दी गई, इट इज़ वेरी लाइकली टू रेन टुडे, आई हैव अ चांस टू पास द एनुअल एग्जामिनेशन, ही हैज़ अ चांस टू विन द प्राइज़. लेकिन कुछ ऐसा होता है कि हम पास्ट एविडेंस की बिना पर हमारा एक ख़ास यकीन होता है. मिसाल के तौर पर कुछ ऐसा है कि अगर मैं ये कहूँ कि फाइनल टर्म में मेरे पास होने के चांस जो हैं वो ज़्यादा हैं, मैं पीछे मुझे मिड टर्म के मार्क्स जो है वो नज़र आते हैं, और फिर मेरी अपनी जो स्टडी है उसको देखकर भी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे मार्क्स भी पीछे मिड टर्म में अच्छे हैं, और अब इन्हीं की बेस पे मुझे एक ख़ास किस्म का बिलीफ होता है कि मैंने पास कर जाना है. किसको? एक पास्ट एविडेंस को देखकर. तो यहाँ से क्या हुआ कि हम एक तो अनसर्टेनिटी, जैसे कि ये मैंने कहा इट इज़ वेरी लाइकली टू रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ये नहीं भी हो सकती. लेकिन ये है कि जैसे ये मैंने कहा कि आई हैव अ चांस टू पास द एनुअल एग्ज़ामिनेशन, यानी मैं चांस है कि मैं एनुअल एग्ज़ामिनेशन पास कर जाऊंगा. मेरा एक ख़ास किस्म का उसके ऊपर यकीन है कि एक तो मेरी अपनी स्टडी, दूसरा ये कि मुझे पीछे के जो मार्क्स हैं वो भी ठीक हैं, तो मैं पास कर जाऊंगा. ये मेरा कुछ ख़ास किस्म का क्या है, उस पर बिलीफ है. What is probability? Probability of something happening means how likely it is to happen. Means how likely it is to be happen, or the chance of its happening. Probability can be shown in fraction, decimal, or percentage form and adds up to 1. Probability or chance is likely something is to happen. If something has a low probability, it is unlikely to happen. If something has high probability, it is likely to happen. Definitions of probability. दो definitions दी गई हैं, एक क्लासिकल और पीरियड डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, दूसरी है द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और पोस्टीरियर डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट जो डेफिनेशंस है उसमें यही है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो एक रेशियो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की. If a random experiment can produce n mutually exclusive and equally likely outcomes, यानी कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वो
जो है n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, m आउट ऑफ दीज आउटकम्स, यानी उनमें से फिर जो m हैं आर कंसीडर्ड फेवरेबल टू द अक्रेंस ऑफ सर्टेन इवेंट a। n टोटल और m जो है वो फेवरेबल्स, then the probability of event A is defined as the ratio m or n. Probability of A is equal to m or n is equal to number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. ये थी क्लासिकल और पीरियड डेफिनेशंस ऑफ probability. नेक्स्ट है the relative frequency or posterior definitions of probability. If a random experiment is repeated a large number of times, say n, under the identical condition, and if an event A is observed to m times, then the probability of event A is defined as the limit of relative frequency m over n. As n tends to infinity, symbolically we write probability of A is equal to limit m over n approaches to infinity. यानी अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो एक लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स पे रिपीट हो तो उसके लिए फिर हम ये प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये डेफिनेशन यूज़ होती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या होता है? द टर्म एक्सपेरिमेंट मीन्स अ प्लान्ड एक्टिविटी, यानी कोई एक ऐसी प्लान्ड एक्टिविटी है या फिर आर प्रोसेस हुज रिजल्ट्स यील्ड अ सेट ऑफ डेटा, या एक ऐसा प्रोसेस है जिसका रिजल्ट जो है वो एक सेट ऑफ डेटा की शेप में होता है। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम, यानी जो रिज़ल्ट हासिल होता है हमें एक्सपेरिमेंट से, जो रिज़ल्ट होते हैं उसको हम आउटकम कहते हैं। एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट, ज़रा तवज्जो करें, एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट इवन तो इट इज़ रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, यानी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करे, डिफरेंट आउटकम्स प्रोड्यूस करे, चाहे वो जितनी बार भी रिपीट हो, अंडर द एसेंशियली सिमिलर कंडीशन इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल द टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन्स, ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स, selecting a sample etc are the example of random experiment. Properties of random experiment. The experiment can be repeated any numbers of times. The experiment always has two or more possible outcomes. यानी एक्सपेरिमेंट जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसको हम किसी भी मर्तबा, जितनी मर्तबा दिल करे उसको रिपीट कर सकते हैं, और ये जो है हमेशा दो या दो से ज़्यादा इसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। An experiment that has one possible outcome is not a random experiment. एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका सिर्फ एक पॉसिबल आउटकम हो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट की पहले डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि एक्सपेरिमेंट दैट प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट्स। सो जिसके डिफरेंट रिजल्ट ही नहीं होंगे, एक होगा, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। The outcomes of each repetition is unpredictable. That is, it has some degree of uncertainty. Outcomes of each repetition is unpredictable. यानी हम जितनी दफ़ा भी उसको रिपीट करें उसके आउटकम्स जो हैं वो क्या हो? अनप्रिडिक्टेबल। अनसर्टेनिटी हो, हमें ये ना पता हो कि अब हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हम ये कहें कि अब जो है वो लाजमी हेड आएगा या लाजमी टेल आएगा, क्या हो? अनप्रिडिक्टेबल।
Sample space, a set consists of all possible outcomes that can result. A random experiment is defined to be sample space and is denoted by letters S. यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट के वो सारे आउटकम्स को अगर हम एक सेट में बयान करें तो उसे हम सैम्पल स्पेस कहते हैं. A set consists of all possible outcomes that can result. A random experiment is defined to be sample space. Each possible outcome is a member of sample space and is called sample point in that sample space. यानी हर पॉसिबल जो आउटकम है उसे हम मेंबर या सैम्पल पॉइंट कहते हैं. Tossing a fair coin result in either of two possible outcomes, head or tail. Sample space of this experiment is S is equal to head tail. Sample space of tossing two coins or S is equal to head 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 tail tail head tail tail. Sample space of throwing a die, S is equal to 1 2 3 4 5 6. Events and its types. An event is an individual outcome or any numbers of outcomes of a random experiment. Event जो है एक individual outcome है या फिर any number of outcomes, यानी random experiment का कोई भी event ले outcome ले ले वो अलग से क्या बन जाएगा, event बन जाएगा. इन सेट टर्मिनोलॉजी यानी सेट के अंदर हम इसको क्या कहते हैं, एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी सैम्पल स्पेस का जो सबसेट है उसे हम इवेंट कहते हैं. सैम्पल स्पेस जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स को एक सेट में लिखे और उस सेट में से फिर उसका सबसेट बनाए तो वो एक इवेंट हो जाएगा. सिंपल इवेंट, एन इवेंट दैट कंटेन्ड एग्जैक्टली वन सैम्पल पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट. सिंपल इवेंट क्या होते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट हो. फॉर इंस्टेंस द अकरेंस ऑफ 6 when die is thrown is सिंपल इवेंट. यानी जब एक हम डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें से अगर हमारा 6 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, ठीक है, एक हो, सिर्फ एक हो, ठीक है, तो फिर उसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं. कंपाउंड इवेंट, एन इवेंट दैट कंटेन्स मोर देन one sample point and is produced by the union of simple events. सिंपल इवेंट्स में सिर्फ एक एग्जैक्टली सैम्पल पॉइंट होता है. अब हम डिफरेंट सिंपल इवेंट्स का यूनियन लें तो वो हमारा बन जाएगा कंपाउंड इवेंट्स. फॉर इंस्टेंस द अकरेंस ऑफ सम ऑफ 10 विद द पेयर ऑफ डाइस इज कंपाउंड इवेंट. अगर हम इवेंट सम ऑफ 10 विद यानी 2 डाइस को हम जब इकट्ठे थ्रो करते हैं, यहाँ पे जो कहा गया है कि जो सम है 10, वो देखें कौन कौन से उसमें से सैम्पल पॉइंट लिए जा सकते हैं. 4 6, इसी तरह से 6 4 और 5 5, ये जो है क्या होंगे, सम इनका 10 होगा. इन इवेंट्स को हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं. Mutually exclusive events, two events A and B of single experiment are said to be mutually exclusive events, are disjoint if and only if they cannot occur both at same time. यानी ऐसे इवेंट्स जो एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में कभी भी इकट्ठे ना अक्कर हों. यानी हमने एक कॉइन टास्क किया तो एक कॉइन टास्क किया तो उसमें या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते. इसी तरह से डाई को थ्रो करें, 1 आ सकता है एक टाइम, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6, लेकिन इकट्ठे ये नहीं आ सकते. ठीक है, ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इवेंट्स आर सेड टू बी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव व्हेन द यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज द इंटायर सैम्पल स्पेस. यानी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स तब होते हैं जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का यूनियन लें, तब वो पूरा सैम्पल स्पेस बने.
लेट्स सपोज हमने कॉइन टॉस किया तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बना है वो है हेड और टेल, और अगर हेड और टेल का हम यूनियन लें, हेड और टेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अब इन दोनों का अगर हम यूनियन लें तो वो सैंपल स्पेस बनता है। तो ऐसे इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके ऑकरेंस के चांस सेम हो, यानी अगर कॉइन को हमने टॉस किया तो हेड के आने के चांस भी 50% है और टेल के आने के चांस भी 50% है। यानी टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स व्हेन वन इवेंट इज लाइकली टू अकर एज द अदर। इन अदर वर्ड्स द बोथ इवेंट्स हैव सेम चांस ऑफ अकरेंस। ऐसे इवेंट्स जिनके अकरेंस का जो चांस है वो सेम है। Axiom of probability. An axiom is statement that is assumed to be true. Axiom जो है एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसे सच साबित किया जाता है, सच समझा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी के भी 3 axioms यहाँ दिए गए हैं। Let S be the sample space with the sample point E1, E2, EI up to En. To each sample point we assign the real number denoted by probability of EI and called the probability of event EI that must satisfy the following axioms. यानी लेट एस जो है हमारा कोई सैम्पल स्पेस है और उसके जो सैम्पल पॉइंट हैं वो E1, E2, EI अप टू EN, ये हमारे सैम्पल स्पेस के जो हैं सैम्पल पॉइंट हैं। हम इन ईच सैम्पल पॉइंट को एक रियल नंबर असाइन करते हैं और उसे डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। तो 3 ये कंडीशंस हैं, इन तीनों कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करें। फर्स्ट है फॉर एनी इवेंट EI 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E लेस देन इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के दरमियान हो, 0 से लेस ना हो, 1 से ग्रेट नहीं होती। Second, probability of S is equal to 1 for the sure event S. Sure events के लिए जो probability होती है वो 1 होती है। Third है axiom 3, if A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये लाजमी शर्त है कि ए और बी या कोई भी सेट हो इवेंट्स हों तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, यानी बोथ जो है एक ही दफ़ा अकर ना करते हों। तब जो है ये थर्ड कंडीशन फुलफिल होती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B is equal to probability of A plus probability of B। ये 3 कंडीशंस हैं जिस पे प्रोबेबिलिटी की एक्सिम्स जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। फर्स्ट 0 लेस देन इक्वल टू probability of EI less than equal to 1. Second, probability of S is equal to 1 for the sure events. Third, अगर कोई 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और अगर उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B,
तो वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।